जजमेंट हम लोग को पढ़ना है। आपके केस में जो हम लोग अपील फाइल की थी, कशिश में, कशिश में और एक कौन से में अपील फाइल की थी ना? रॉयल कटिंग में तो। हाँ, टेक्निकल और लॉ का ग्राउंड, जो लॉ का हाँ ग्राउंड लिया था जैसे उसी, ये तो टेक्निकल ग्राउंड है। लेकिन मैं आपको दिखलाता हूँ लॉ का ग्राउंड हमने क्या लिया, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। 3B इज नॉट रिटर्न करके सर जो लिया था हम लोगों ने। ये देखिए, वही वही, थ्री इज नॉट रिटर्न। credit has rightly been claimed on the basis of GST law as the law existed before 1st October 2022. The credit has been taken provisionally on the basis of Section 41 for the period 1819 and 2021. Section 41 allowed taking credit on provisional basis, 1819 2 होना चाहिए पर खैर। आपका 18-19 का केस है ना? Subject to the satisfaction of condition as specified in Section 16. The relevant section 41 is extracted before and after amendment. अगर आप 41 को देखेंगे तो यहाँ पर क्लेम ऑफ आईटीसी क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, वहां पर ये एंड यहाँ पर लिख दिया अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, और यहाँ लिखा टेक द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न, सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर। और ये प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट लीजर पे क्रेडिट होगा, मतलब सेक्शन 16 के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसके बावजूद आपको क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पे मिलता है। अब प्रोविजनल बेसिस पे मिल रहा है, यानी कि टेम्पोररी मिल रहा है, अगर बाद में डिपार्टमेंट इसको रिवर्स कर सकता है, अगर सारे कंडीशंस को डिपार्टमेंट को लगता है सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो। लेकिन अब 41 ये कह रहा है कि भैया आप प्रोविजनल बेसिस नहीं है, आप क्रेडिट लेंगे, टू बी में जितना आ रहा है वही फाइनल होगा, उसके बाद आप और दूसरा कोई क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। बाकी ये सब कुछ कहानी लिखी हुई है कि 180 दिन वाला है या फिर टेम्पोररी रिवर्सल है तो आप बाद में रीअवेल ये सब कर सकते हैं। ये तो 1 अक्टूबर 2000 कब से है? 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन 22 अब समझिए, सेक्शन 41 was substituted, और ये ठीक है। Applicability of section 16 subsection 4 was wholly dependent on the operation of form 1A, 2 and 3, which was never made operational and was ultimately omitted. The details of omission of the said forms are detailed below. 1A 1 अक्टूबर 2022, 2 1 अक्टूबर 2022, 3 1 अक्टूबर 2022, यानी कि इससे पहले ये फॉर्म एग्जिस्ट करते थे। For the period 1819, 3B was not a return as per Rule 61. Rule 61 was substituted with effect from 1 जनवरी 2021 and by notification relevant Rule 61 is extracted below. अब Rule 61 1 जनवरी 2021 से नया आया, 3B तब रिटर्न बनाएगा, उससे पहले तो था ही नहीं। जब उससे पहले था ही नहीं तो 16(4) कैसे ऑपरेट होगा? कैसे? So अब section 16 subsection 4 can be applied if the appellant had filed 3 and not when it had filed 3B. And therefore the appellant is entitled to take credit, and restriction imposed under section 16 subsection 4 cannot be applied. राइट, Exact judgment भी इसी के यही लिए। है सर, इसी बेसिस ये पे। इसी में ही आया है। So the petitioner argues that as per section 38 of GST Act, the ITC shall be claimed through GSTR 2, but GSTN had not provided the facility of GSTR 2 until now. The petitioner further argues that the claim of ITC defined under Rule 60, which read as a form and manner of furnishing details of inward supply, the registered person shall specify the inward supplies in respect of which he is not eligible, either fully or partially, for input tax credit in 2. Eligibility can be determined at the invoice level. When the rules specifically prescribe GST 2 to specify inward supply for claiming ITC, when the said form is not notified, the petitioner cannot be expected to file the same to claim ITC. The respondent agrees that the rate petitions are not maintainable since the ये तो बेकार है. The court observed that the petitioner properly filed monthly 3B returns as prescribed. The court further observed that as per Rule 60, the ITC shall be claimed through 2, but GST had not provided the facility of 2 until now. The court relied on the judgment rendered by High Court of Punjab and Haryana that allowed the taxpayer to file the return either electronically or manually if the portal is not opening. And in the absence of an enabling mechanism, the SSC cannot be prejudiced by not granting ITC. Therefore, the court is inclined to set aside the impugned order. This. तो ये है। तो 16(4) की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन फॉर्म्स ये सबको चैलेंज कर दिया। यस, तो ये पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे। समझिए नहीं। ये देखिए, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट 3B में बी ट्रीटेड एज रेट्रोस्पेक्टिवली, फिर काउंटर, ये सब। अच्छा, इसने 3B मैनुअली फाइल कर दिया था, आप देखेंगे
द टैक्सेबल पर्सन मैंडेटेड टू फाइल मंथली रिटर्न ओनली इलेक्ट्रॉनिकली नॉट बाय मैनुअली। एसएससी ने 3B मैनुअली फाइल कर दिया था, उसके बावजूद उसको क्रेडिट दे दिया कोर्ट ने। और आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था, कैन 3B में जब सेक्शन 39 में वर्ड इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है, हम्म, तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू शो इज बोनाफाइड ही हैज फाइल्ड फिजिकली। पढ़िएगा, ये जजमेंट पूरा पढ़िएगा। ये जजमेंट क्यों पूरा पढ़ना, जब आप रिप्लाई बना रहे हो तो कुछ लैंग्वेज इसी में से उठा लीजिए, कुछ पैराग्राफ इससे उठा लीजिए, तो आपका रिप्लाई अच्छा बन जाएगा। एक और जजमेंट आया जिसमें जीएसटी, अरे इसमें किसी को कोई डिस्कस करना तो बताइए। 7010 गुवाहाटी का सर। ये रहा, यस हाँ। गुवाहाटी का। अब देखिए हमने जो लैंग्वेज लिखी है, SMT10 मैंडेटरी टू फॉर्म एन ओपिनियन फॉर इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस। बाकी लोग क्या लिख रहे हैं कि SMT10 मैंडेटरी फॉर इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस, ये जो टू फॉर्म एन ओपिनियन गायब कर दे रहे हैं। अब आपको मैं कुछ बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कन्हैया जी, जी सर, जी सर, हम सुन रहे हैं कन्हैया जी के पास एक नोटिस आया, आप लोगों को भी पता होगा, और या फिर अनिमेश जी के पास भी एक नोटिस आया था बुद्धा डेवलपर का, याद है आपको? और बुद्धा डेवलपर में क्या था कि बिहार के लैंड रिकॉर्ड से कुछ इशू निकाला और DRC 01 कर दिया। कन्हैया जी के केस में पता नहीं क्या, अरे एक ब्रिक्स का केस याद है आपको, ब्रिक्स का? तो उसने कहा कि भैया कोल खरीदा है जिसमें से 400 टन आज भरा है, तो एक टन पे assumption इतना, presumption बेस। हाँ, एक टन पे assumption ब्रिक्स पे presumption इतना बनेगा वगैरह वगैरह निकाल दिए। हाँ, कन्हैया जी के केस में भी कुछ कुछ ये लेबर उबर और मटेरियल को डिवाइड करके कुछ निकाल रहा है ना? जी 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 सर। अब आप सच सोचिए, कुछ नोटिस ऐसे आ रहे हैं जिसमें सिर्फ सेक्शन मेंशन ही नहीं है कि DG आर्म से आया है, इसीलिए हमने आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ठीक बात है। अब जी सर। इस पार्टी ने क्या किया, ये जो बिना सेक्शंस के नोटिस आ रहे थे, ऐसे ऐसे नोटिस, हम्म। इसका रिप्लाई दिया या नहीं दिया इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद, इस नोटिस के बाद DRC 01 इशू हो गया। ये DRC 01 इसी के, क्योंकि आपने शायद रिप्लाई नहीं दिया, तो प्रिजम्पशन और एजम्पशन के बीच में इशू हो गया। तो जी सर। बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो इस तरह के बिना सेक्शन मतलब ये और एजम्पशन और प्रिजम्पशन के बेसिस पे जो नोटिस इशू किए गए, इसको चैलेंज किया और कोर्ट ने कहा कि अगर आपको DRC 01, एक बात और बता देता हूं, DRC 01 में लिखा वेयर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, याद है आपको? वेयर इट सर, अपियर्स प्रॉपर ऑफिसर। अब ये अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या होता है? द ऑफिसर शुड हैव अप्लाइड देयर माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए उसके पास। माइंड तो है ही, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा है। मैं आपको एक नासिन का बुक दिखलाता हूँ, हमने उसको डिस्कस भी किया था आपके साथ। ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये देखिए। In the case of Geniyat Computers, the Honorable High Court of Bombay explained the meaning of adjudication. The Honorable Court has noted that adjudication ordinarily means to act and decide judicially. Court further observed that acting judicially is not performing some rituals or completing somehow the assigned work, but is serious business and requires continued application of mind and alertness. Court thus observed that it should not be undertaken casually, and no one can approach judicial proceeding in a light-hearted manner. एक मिनट, अब मैं जजमेंट पे आता हूं। तो इस नासिन के बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाएंगे, पैराग्राफ मिल जाएंगे जो आप कोट कर सकते हैं आप अपने रिप्लाई में। एक्चुअली नर्सिंग कहाँ में मिलेगा? ये हमारे वेबसाइट पे, रिसोर्स में मिलेगा? हाँ,
सर मैं इसको डाउनलोड करके स्पाइरल कर दिया हूँ अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब इसको लेके डिपार्टमेंट जा रहा हूँ सर। वो हाँ बोले बेस्ट। ये बुक तुमको कहाँ से मिला? अच्छा, वो बोल रहा मैं है। बोले हाँ, हाँ हमें भी चाहिए। हाँ, तो लीजिए सर, पैसा देना होगा उसके लिए। वही। एनर्जी ट्रांसफर तभी होगा। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ हर एक को बांट हम्म, दीजिए, बोला सर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको जो अथॉरिटी जो ट्रेनिंग देता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो ग्राउंड बैकग्राउंड बताया उसके बेसिस पे ये जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जजमेंट में आखिर कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। The petitioner's argument is that the mandatory condition precedent required for invoking provisions for issuance of impute demand cum show cause notice are absent. Furthermore, the alleged discrepancy in the demand cum show cause notice is due to petitioner's community not submitting information in table 14 of 9C. बताइए आप, देखिए 9C में टेबल 14 के बेसिस पे आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है और आपने उसमें भरा नहीं क्योंकि ऑप्शनल था, और उसके बेसिस पे वो आपको कोई डिमांड रेज करता, तो इज इट वैलिड डिमांड? नो। और हमने ये कहा था कि हर जगह कि 9 और 9C के डॉक्यूमेंट को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, गलती है होगी, which is made optional. Therefore, there cannot be any error or discrepancy from non-filing of information on the part of the petitioner company, according to the petitioner. The respondent's argument is that the notices regarding the discrepancy had been sent to the petitioner company several times. Wide letter, this, respect by the हाँ CA. नमस्कार सर आज वो केते पेपर नहीं कि जयपुर ऑफिस से जाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए, सीएजी कैसे और भेज रहा है नहीं पता, लेकिन ये जितने भी इन्होंने 1 2 3 4 नोटिस भेजे हैं उसमें कोई सेक्शन मेंशन नहीं किया होगा। The learned standing counsel for the respondent also contend that non-issuance of Form SMD10 does not result in violating the basic principles of natural justice, since the impugned demand cum show cause notice has been issued to the petitioner company as the SSC and in conformity with the principles of natural justice. तो ये कह रहा है कोई बात नहीं, SMD10 इशू नहीं किया, लेकिन SCN तो वैलिड है। मैं भी मान रहा हूं कि SMD10 इशू करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको SCN इशू करने के लिए आप यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। आप सिर्फ टेबल 14 के में जो आपने फिगर देनी थी, मतलब ऑप्शनल फिगर थी, वो नहीं दी, और क्योंकि नहीं दी आप उससे अलग से मांग रहे हैं, इसका मतलब परेशान कर रहे हैं आप टैक्स पेयर को। और आपको एक ब्लैंक लेटर बिना सेक्शन ये सब के इशू कर दिया, डीजीआर के नाम पे, एडवेट के नाम पे, और जब नहीं देंगे तो एससीएन इशू कर दिया। इसका मतलब आपके पास एविडेंस था ही नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव अदर देन आईटीसी। The court observed that an act of issuance of impugned demand cum show cause notice was without compliance with the mandatory precedent prescribed, more particularly the provisions of section 61 to derive jurisdiction to issue such demand cum show cause notice under section 73 impugned therein. Therefore, it was ordered that the operation of impugned SCN shall remain stayed until the returnable date, and the respondent GST authority shall file their response in the meantime. अगर ये सब इशू नहीं किया होता, ब्लैंक, विदाउट सेक्शन, विदाउट अथॉरिटी, तब SCN शायद वैलिड हो जाता, अगर वहां पर भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता तो। At that stage, the alleged discrepancy would only be a discrepancy simply, but at the stage of issuance of demand cum show cause notice, there is formation of prima facie opinion on the part of the proper officer that there is an act which is in violation of statutory obligation cast on the notice. Admittedly, in the case in hand, the form SMT10 was not issued to the petitioner. A contention has also been raised that CAG is not the proper officer to issue any kind of letters regarding the discrepancy. तो इसका डिटेल तो मुझे नहीं पता, obviously CAG is not the proper officer, DG arm is not the proper officer, advocate is not the proper officer.
प्रॉपर ऑफिसर डिफाइंड है, वही प्रॉपर ऑफिसर है। लेकिन जब डीजी आर्म से कोई नोटिस आता है इनको, तो ये लिखते हैं कि डीजी आर्म का रिपोर्ट के बेसिस पे ये भेज रहे हैं, वो भी बिना सेक्शन के। म्यूट कर लीजिए, आपस में जाओगे बात करते हैं। सर एडवेट का मतलब क्या होता है? एडवेट? एडवेट एक वही रिसर्च कुछ इनका विंग है, एडवेट। ओके। एडवेट सीबीआईसी कोई रिसर्च का विंग है। एडवांस एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सक्षम सीबीआईसी। तो ये है। तो जो आप एकदम शुरुआत के मतलब ये बात की, जो मैं बार बार बोलता हूं कि भैया सेक्शन नहीं है तो चैलेंज कीजिए, दीजिए मत। क्यों? मैंने आपको बताया था, बिना सेक्शन का नोटिस इशू कर लिया, एविडेंस आ गया, अब दे कैन इशू 73। तो 73 74 वो इसी मतलब उनके पास ग्राउंड होना चाहिए ना 73 74 इशू करने का। वो ग्राउंड कहां से आएगा? आप ही बोल रहे हैं कि आप बैल मुझे मार। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ जैसे ये लिखते हैं कि भाई एडमिट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आई है, आपसे ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो हाँ। वहां पे हम वो रिपोर्ट डिमांड कर सकते हैं एडमिट की या डीजीआरएम की? बिना सेक्शन के कुछ नहीं मांग पाएंगे। नहीं, ये बोले सर हम डिमांड कर सकते हैं क्या? उनका जो रिपोर्ट आया है डिमांड कर सकता है? टैक्स हाँ, पेयर, मांगिए 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 मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हमारा राइट्स है ना। जी जी यू कैन आस्क फॉर दैट। सर अभी मैंने बुद्धा डेवलपर में बोला अफसर को, गया था 2 दिन पहले। हाँ हाँ। बोलते हैं ना मेरे पास, आप उसके लिए मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, नहीं वो एंटी वो में था। नहीं नहीं, हमें रिटर्न मांग देखना है। लीजिए। देखिए, जब आप वर्बली मांगते हैं तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, और रिटर्न मांगते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको फिर चैलेंज करेंगे ना। अरे कन्हैया जी के केस में क्या हुआ था? वो झारखंड वाले में सिर्फ 18 19 का केस था, उन्होंने 17 18 18 19 19 20 20 21 सब ठोक दिया। हमने उस वक्त भी कन्हैया जी को कहा था रिपोर्ट मांगिए, पता नहीं क्या किया उन्होंने। रिपोर्ट मांगे थे सर, उसके बाद कुछ किया ही नहीं है वो। रिटर्न में मांगे हैं। रिटर्न में तो नहीं मांगे हैं। हाँ, तो फिर अब क्या बताया आपको? नहीं, कमिश्नर से जाके बात किए थे हम। आप ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है? प्राइम मिनिस्टर से पास गए ही थे तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी चले जाते। कुछ भी हो एप्लीकेशन डाल दीजिए कि हमें ये चाहिए रिटर्न। मेन मेन सर हम पहले से बना के दे दिए थे ना जवाब, सर इसी कारण। कन्हैया जी, अब कैसे समझाएं आपको? जो आपको बोला जा रहा है वो कीजिए ना। आपने क्या किया क्या नहीं नहीं, वो तो आपने मुझे बताया है ना, उसके बाद ही ये बोला। नहीं नहीं, जवाब उससे पहले दे दिए थे, मैंने अरे वो मैडम तो को जाकर आप दे दिए। समझ ही नहीं रहे कन्हैया जी। ये सब बातें आपने तो मुझे बताई है, उसके बाद ही एडवाइस दिया गया ना आपको। जी जी। तब तो ये तो मुझे भी पता है, जवाब आपने दे दिया है। फिर भी मैंने कहा कि मांगिए उससे, कोई कारण नहीं होगा ना। सर ईयर 9 से related question है। हाँ मैं तो क्वेश्चन रेस करता हूँ। हाँ जी, अपना नहीं। जीएसटीआर 1 में हम्म सितंबर क्वार्टरली रिटर्न था जीएसटीआर 1, उसका अक्टूबर में हमारे स्टाफ ने फाइल किया। हम्म। उसका शेष में 1,11,215 पॉइंट समथिंग था, लेकिन उसने गलती करके पूरा फिगर बिना डॉट डाले सीधा ले लिया फिगर, मतलब क्रोज में बन गया। अच्छा। वो फाइल हो गया। जब 3B फाइल किया तो एक्चुअल फिगर फाइल किया तो मिसमैच का नोटिस आता है, जो DRC 01 भी आप बोलते हो वो आने लगता है। तो हाँ सिस्टम हाँ ने DRC 01 भी दे दिया। हाँ हाँ डिफरेंस इन द लायबिलिटी ऑफ एज रिफ्लेक्टेड इन GSTR 1 एंड 3B, हाँ उसका हमने रिप्लाई भी दे दिया कि क्लरिकल एरर है, और उसको हम अगले GSTR 1 में करेक्ट कर देंगे। वो हाँ सिस्टम से चला भी गया हाँ DRC 01 का रिप्लाई, बी का हाँ रिप्लाई। हाँ। अब ये काफी है क्या कि यहाँ जाके कुछ करना पड़ता है अपने को? कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ बराबर नहीं। ना? हम्म। उसके बाद थोड़ी कुछ हुआ है, नहीं, नोटिस। कुछ नहीं हुआ है, अभी लेकिन तो आपके उसके पास GSA 1 तो अमेंड करने का टाइम है ही आपके पास। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है, जब तक ये वो तो अभी कैसा हो गया है कि जब तक हम लोग लायबिलिटी नहीं डिस्चार्ज करते, एक तरीका ये है कि GSTR अगला 1 नहीं ओपन होगा।
हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ ऊपर नहीं होगा सर उनका। ऐसा कैसे? हाँ सर, हाँ सर। अभी दे दिया, सिक्वेंशियल फाइलिंग दिया है सर। नहीं नहीं, फाइलिंग तो कर दिया, कम लायबिलिटी पे किया, तो GS1 कैसे नहीं ओपन होगा? नहीं होगा फाइल सर। फाइल तो कर दिया ना सर, और हाँ रिप्लाई दे दिया तो ये होगा। अगले में आप रेक्टिफाई कर दीजिए सर उसको। हाँ नहीं कर देंगे, लेकिन ये आएगा कि नहीं वो देखना है मुझे। मैं ये क्वेश्चन नहीं इसलिए सर, रेस्ट आएगा आएगा। आएगा ना, वो अगर कुछ डिपार्टमेंट में जाके मिलने की जरूरत नहीं है ना नहीं सर, ऑफिसर को। नहीं नहीं, हाँ अगर ये आप 3B फाइल नहीं करते तब नहीं आता सर। हाँ, 3 से तो फाइल कर दिया है। हाँ, 3B कर दिया फाइल तो हो बस। गया तो GSTR1 फाइल कर सकते हैं। जी इधर जी जी। डिपार्टमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ASMT 10 इश्यू करेगा, अगर ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये तो अभी तो करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर में एसएमटी तो आता ही नहीं है 10। करंट ईयर नहीं में वो सितंबर में ही हुआ है ऐसा। वो आर्टिफिकेशन में लेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब आप अपना काम कर दिए, बस खत्म, फाइल कर करेक्ट। सकते हैं आगे। वो मैं तो यही थोड़ा वो सोच रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स के साथ सब डिस्कस किया था, बोले कि एक सिस्टम है जो DRC-01 भी चला जाएगा जुडिशनल ऑफिसर के पास, वहां पे जाके वो एक्सेप्ट करेगा रिप्लाई, तभी जाके DRC-01 अपने आप सिस्टम पोर्टल दिखाएगा सब्सिक्वेंट फाइलिंग सर का। ना इसमें वो तो नहीं, ऑटोमेटिक लिखा है ना सर कि वो ऑटोमेटिक ओपन ऑटोमेटिक हो लिखा जाएगा। है। यस यस, ऑटो। ठीक है ठीक है ठीक नहीं, है। तो जरूरत मैंने नहीं। कोशिश भी किया। मैं ऑफिसर को जाके मैं देखा कि मैंने सब तो कुछ वन सेटिंग पॉइंट करा सर, लिया, उसके पोर्टल पे कुछ नहीं था। DRC-01 जो अभी बहुत मिल रहा है अनसाइंड, उसका को भी रिप्लाई देने के बाद फिर हम अपील में उसको चैलेंज कर सकते हैं क्या नोटिस का? क्या पूछ रहे हैं? अभी DRC-01 DRC-01 बहुत सारे नोटिस आ रहा है अनसाइंड, तो बेसिकली रॉन्ग है आपने बोला। तो वन हम DRC-01 आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, 07 चैलेंज कर पाएंगे। 07 ऑर्डर ही चैलेंज होता है ना, नोटिस कैसे चैलेंज होगा? ना, नोटिस को चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में जाइए। 01 के रिप्लाई हम दे दिया, अनसाइंड नोटिस का रिप्लाई दे दिया, उसके बाद 07 आया, उसके अपील में हम 01 का प्लीट ले सकते हैं क्या? अनसाइंड था, इसी बारे में कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ, ऑर्डर में ले सकते हैं, ऑर्डर आने के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन जब DRC-01 आया उसी वक्त आपको उसका रिप्लाई देते वक्त आपको ये प्ली लेना पड़ेगा कि ये अनसाइंड है, नहीं तो शायद एक्सेप्ट ना हो वो टेक्निकल ग्राउंड। ना, तो उसी टाइम तो उसका डिपार्टमेंट का व्यू होगा, तो DS-1 का रिप्लाई आप लोग दिया तो ये हैव एडमिटेड द। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, डिपार्टमेंट ये कह सकता है, लेकिन ये अपील में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं दोबारा। अपीलेट अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। कौशिक जी, कौशिक रंजन डे कहाँ के हैं आप? कौशिक रंजन डे, असम से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं भूल गया। ठीक ठीक। सर GSTR 9 से सर रिलेटेड। हम एक 16/4 का रिप्लाई दिया आपको, ठीक है कि थोड़ा देखिए तो, एक रिप्लाई भेजा था, मेल पे है? मेल में भेजा था पार्टी को, सबमिट हुआ हुआ। नहीं, आज हमने जो अभी आपको रिप्लाई दिखलाया 16/4 का, ना उसका बारे में देखिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये क्या लिखा आपने? ये कि 2001 में तो 39 में हुआ ना रिटर्न, वो 3B का सर जो किया। इसमें सेकंड थर्ड पे क्या, थर्ड पैराग्राफ में ऊपर क्या लिखा है, उसको सेक्शन 64 का कंडीशन क्या लिखा है? यहाँ पर इसमें लिखा कि 41 में कि प्रोविजनल बेसिस पे लिया हुआ है, ठीक है। और 41 में प्रोविजनल बेसिस हटाया दिया गया 1 अक्टूबर 2022 से। 16/4 का पैराग्राफ प्रोड्यूस किया गया और 16/4 को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। और कह रहा है 39 मंथ सितंबर 2018, 39 का कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हुआ, तो मदुरई बेंच का भी जजमेंट डाल दिया। एंड द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 5 फरवरी 2020। इसमें जो किए ऐसे हैं विद इन उन्होंने स्टिपुलेटेड डेट हो गया। 1 मिनट,
एक मिनट, सर किसका है ये? कौशिक जी का है। हाँ। कौशिक जी एक बात बताइए, 5 फरवरी 2020 है। हमारा तो 1/6/2019 में क्लेम किया। कब क्लेम किया? 1/6/2019 ये फिगर है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर दैट मीन्स तो हमारा तो अर्लियर तो ये डेट पूरा। नहीं, ये तो 39 में तो सितंबर 80 में रिटर्न ही नहीं आया ना। क्या चीज? 39 में तो रिटर्न नहीं था ना तो ये सितंबर अच्छा, 80 ये में। रिटर्न नहीं था, ये कहाँ लिखा आपने कि हमने दिस लिखा था रिटर्न अंडर दिस सेक्शन लाइन इज 39 नॉट केम इनटू एप्लीकेबल? एग्जिस्टेंस इन 1/1/2001 में आया। नहीं, आपको यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहिए था आपको, हम यहीं बोला पे। रिटर्न अंडर सेक्शन 3 केम इनटू एग्जिस्टेंस विद अमेंडमेंट रूल 61 ये बोला। ये जो तो ये 82, क्लैरिटी नहीं आ रही है जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ क्लैरिटी, गया। हाँ। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन पूरा आपका क्लैरिटी नहीं दिया हम, इसीलिए ये ठीक बात ठीक है कि नहीं बोली। हम तो दे दिया, मैं नहीं समझ तो गया, लेकिन आप एक बात समझिए, आप इसका मतलब 16/4 अप्लाई तो कर रहे हैं, हम्म, है ना? 16/4 आप अप्लाई कर रहे हैं ये वाले डेट तक। हम्म, ये तो रिटर्न था ही नहीं, तो ये वाले रिटर्न ठीक है, ठीक है, ठीक, ये भी अच्छा ग्राउंड है कि 16 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल, but since there was no return, therefore this date is not applicable, only this date is applicable, and this date is 5th February 2022। हाँ, ये भी अच्छा है, ये कर सकते हैं। पॉइंट तो है सर इसमें। हाँ हाँ, पॉइंट है इसमें, लेकिन इसमें है ना ये वाला केस, ये वाला इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ये एडिशनल दे दिया है। नहीं, ठीक किया, ये अच्छा लगा मेरे को कि जब ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो ये मानो, मतलब हम लोग तो ये कह रहे हैं 16/4 ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, कौशिक जी कह रहे हैं 16/4 एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यही एप्लीकेबल। वो जो अमेंडमेंट लाए हैं बाद में, वो रेट्रोस्पेक्टिव कर दिए, व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लिखना चाहिए था इसमें। वो तो एग्जिस्टेंस 1/1/2021 में आया ना। हाँ, आया है, तो उसका लेकिन हम जो उस आप 1/2020 हमारा तो 18-19 को उसका पीरियड हमारा जो एनुअल मैं रिटर्न मैं ही चला मैं गया। आप उसको पढ़िए, वो नोटिफिकेशन को, वो रेट्रोस्पेक्टिवली किए हुए हैं। आप किसी का सब्सटेंशियल राइट्स को छीन रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको यहाँ कोट कर देने से बहुत अच्छा तो होगा। नहीं, रवि नारायण जी, उसका कोई जजमेंट है क्या? कहाँ? ये जो आप बोल रहे हो उसका कोई जजमेंट है क्या कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं नहीं, ये तो हमारा आर्गुमेंट है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट। 16/4 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम नहीं बोल रहे। ओके ओके, ये 16/4 फिर सब्सटेंशियल क्लॉज भी नहीं है। अगर वो सब्सटेंशियल क्लॉज होता, वो 16(2) में ही डाल देते। ठीक बात। 16/4 अलग है, एक अलग चीज है हाँ ठीक है, आप ये। करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, अच्छा ग्राउंड है, इसको हाँ, थोड़ा। ये एक अच्छा ग्राउंड। हाँ, कौशिक जी इसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। आप ऑफिसर के सामने यही आर्गुमेंट दीजिए, वो ऑफिसर तो बोलेगा हम अमेंडमेंट कर दिए। आप बोले वो जो रेट्रोस्पेक्टिव किए है, व्हिच इज अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो किया है, अमेंडमेंट हम बोला तो इस तारीख में जो भी है रेटो से हम लोग का तो 1/1/2001 में मालूम हुआ इस सेक्शन के बारे में। उसका पहले तो हम मालूम नहीं है ना। ठीक उसका बात, ठीक पहले तो बात। हमारी खत्म हो गया सब। नहीं नहीं, और अच्छा है, इसको है ना थोड़ा सा और डिटेल में लिख दीजिए। ना मैं इसीलिए लेकिन मैं अभी नीचे एक्सप्लेन में कर लिख रहा दिया हूँ, तो चला ये गया। कोई। अच्छा, हाँ इसके साथ इस मदुरई का देना ठीक नहीं था क्या? फर्दर दिया है जो। हाँ, ये मदुरई भी में ठीक तो है। आप देखिए, ये ग्राउंड लिया और एक दूसरा ग्राउंड, ये जो मदुराई वाले का जो ग्राउंड लिया गया, उसको भी आप दो दो ग्राउंड ले सकते हैं, क्योंकि लॉ का एक एक इंटरप्रिटेशन आप ये ले रहे हैं, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये था, तीसरा ये था कि 16/4 ही इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो हाई कोर्ट, वो तो ग्राउंड लेके कोई फायदा है नहीं। नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं गया। ऑन को 16/4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल के लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो तो है हम नहीं, लेकिन ये हम एक तीसरा कहानी आ गया जो हम लोग के दिमाग में नहीं था, लेकिन इट्स ए गुड वन। और इसने जो ग्राउंड लिया है इसको भी पूरा लिखिए।
वो तो 16(4) है, एप्लीकेबल ही नहीं, ऐसा बोल रहा है। हाँ 16(4) और 17, 18, 18, 19, 19, 20 देखिए, तक आप एप्लीकेबल ही नहीं। कौशिक जी जो कहना चाह रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट का मदुराई ब्रांच का देखेंगे तो ये कह रहा है कि जीएसटी 2 के बेसिस पे क्रेडिट लेना था, 2 एग्जिस्टेंस में नहीं था, या 3B एग्जिस्टेंस 3 सर, में नहीं 3 था। सर। जब 3 नहीं था तो ये देखिए, हाँ रजिस्टर पर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड दिस फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। रिटर्न तो 3 है ना, 3B थोड़ी है। सर ये जो यही लाइन है सर, फर्निचर रिटर्न अंडर सेक्शन 39, अंडर हाँ, सेक्शन 39 में जो रिटर्न आ रहा है वो जीएसटी 3 आ रहा है। 3 तो एग्जिस्टेंस भी नहीं था। यस। अब कौशिक जी जो कह रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं ये रिटर्न में आ रहा है, लेकिन इस रिटर्न में ये वाली जो लाइन है, रिटर्न अंडर सेक्शन 39, वो कट नहीं करना दे रहा। रिटर्न अंडर सेक्शन 39। नहीं, यही लिखा हुआ है सर, ये जो लाइन सर उसको निकालिए सर। ये व्हिच एवर इज अर्लियर द पेटेंट फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, व्हिच एवर इज अर्लियर आइदर राजेश जी, आइदर 3 समझ और गया। एनुअल रिटर्न। सो 3 राजेश, नहीं है तो एनुअल रिटर्न ही मानते हैं हम। ठीक है। राजेश जी। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर। चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। सर, चलेगा। क्या है सर, इन्होंने लाइन में क्लियर तो कर